Hello and very good morning, my dear students. How are you today? Today we are again going to solve the NCERT numerical problem from the chapters of current and electricity. Okay, so we have some questions, okay, and especially the numerical problems. So let's start to solve it. The first question is that आपके पास है draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery and of 3 cells of 2 volt each and 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 resistors and a plug key are connected in series. तो बेटे आपके पास 3 सिस्टर्स हैं, एक बैटरी है, प्लग्स है, की है, सबको किस में डायग्राम में करना है, इसको डायग्राम बनानी है, बट ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वी हैव हियर टोटल. First of all, you have given 3 cells, each of 2 volt. So, 1, 2 volt, 2 volt and 2 volt. Then after, next is given a key. Next we have here 1 resistor, another resistor and another resistor. Okay. So with a schematic diagram you have to draw of 3 cells, each of 2 volt battery and resistors of 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm. Current is always flowing from positive terminal to negative terminal. Positive to negative. This is the value of electric current and electric. So this is the schematic diagram of 3 cells, 3 resistors, 1 key, okay, in series combination. तो बेटे सीरीज में हम कैसे लगाते हैं? One resistor is connected to the another resistor connected to the next another resistors. Okay, so this is one of the question in your NCERT book. ओके, दिस इज क्लियर बेटे. तो हम इसको ऐसे बनाएंगे. ओके, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चंस को बोल देता हूँ दैट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस. आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है, मगर मान लो अगर आपको बोल देते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाओ, सेम सर्किट डायग्राम को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे बनाएंगे? तो बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर को लगाते हैं. जो हमारे पास बैटरी के सेल्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, ई भी सेम रहेगा, बस ये R1, R2, R3 को हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगा देंगे. कैसे? ऐसे. लेट्स सी. 1, 2 and 3 and again here battery, E and this. We have here 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm. Here is 2 volt, 2 volt, 2 volt. Battery positive, negative, and this is the key. The current is flowing from this section to the. So here current is I1, I2, I3, and here current is I. बेटे याद रखिए, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस करंट डिवाइड्स. सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I. Whenever it reaches the point is 1, further it divide into 3 parts, I1, I2, I3. पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज डिवाइड होगा और करंट सेम रहेगा. ठीक है, तो इसमें अगर टोटल वोल्टेज कितनी है? Total voltage is V across the 2 ends of the cell, but the voltage across first ohm resistor is, इसमें वोल्टेज होगी V1 and R2 में वोल्टेज होगी V2 and in this one होगी V2, और टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू होगी V is equal to V1 plus V2 plus V3. Similarly, in case of electric current, total current इसमें कितना आएगा? Total current I equal to I1 plus I2 plus
I3. Suppose there is a total बैटरी कितनी बेटे 2 + 2 + 2 तो बन गया 6 वोल्ट का बैटरी है। सपोज 3 यहाँ पे करंट कितना है 3 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर करंट होता तो इसमें कितना जाता 1 1 1 1 + 1 + 1 तो टोटल वैल्यू बन जाएगी जिसकी 3 एम्पियर करंट। ठीक है बेटे। तो ऐसे क्वेश्चन है, आपने इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके चलना है। आपको ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज कर दे तो आप देखें जी अब क्या करना है। नो, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एंड गुड बेसिक होना चाहिए और फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट का। ठीक है बेटे। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इन वन मोर क्वेश्चन यू हैव गिवन वैल्यूज हियर। In next question, redraw a circuit of question 12, putting in the ammeter. Okay. In the question number this, here is 2 volt, 2 volt, and 2 volt. 98 positive, 29 volts. Here is 5 ohm, 8 ohm, and 12 ohm. The question is that in this diagram, find the value of total electric current. Number 2, find the potential across 12 ohm resistor. Okay, find the potential across 12 ohm resistor and find the total current flowing in the circuit. अब हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना बेटे। तो करंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज का वैल्यू कितना बेटे। इफ द वोल्टेज इज गिवन, वोल्टेज कितनी सेल है, सेल हमारे पास है 1 ईच ऑफ 2 वोल्ट। तो 2 + 2 + 2 कितना हुआ, टोटल वोल्टेज कितना हुआ 6 वोल्टेज। तो हम लिख देंगे V = 6। अगर करंट निकालना है तो वोल्टेज पता होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। These 3 रेजिस्टर 1 2 3, ये कॉम्बिनेशन कैसा बेटे, सीरीज के पैरेलल। अगर सीरीज है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो R1 + R2 + R3, तीनों को क्या करेंगे ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू बच गया 25। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 25 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इज 25 ओम। ठीक है। नाउ बाय अप्लाइंग द ओम्स लॉ, हमने क्या कहते हैं, V = I का, V = I R and I = D over R. This is equal to 6/25. 6.25 equal to 0.24 ampere. So this is the values of the electric current. Okay. Now we have to find the voltage. What is the voltage across 12 ohm resistor? तो बेटे वोल्टेज का मतलब होता है V निकालना है, वोल्टेज। ठीक है। और V का फॉर्मूला क्या होता है, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V = IR। ठीक है। R तो आपको पता है और I भी पता है। I और R दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू बन जाएगा इसका वोल्टेज। तो वोल्ट हम लिखेंगे वोल्टेज और पोटेंशियल भी बोल देते हैं बेटे, पोटेंशियल अक्रॉस 12 ohm resistor is, तो बेटे V = क्या होता है IR। तो V = I कितना करंट है बेटे 0.24, रेजिस्टर कितना है इसका 12 ओम। ठीक है। इसकी वैल्यू आपका बन गया 2.88 वोल्ट। दिस इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में आप वोल्टेज निकाल सकते हो 12 की। अगर मेरा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। अगर 8 का निकालना हो तो क्या करेंगे, सारा कुछ सेम रहेगा, रेजिस्टेंस की जगह हम 8 पुट कर देंगे। तो 0.24 को मल्टीप्लाई विद 8। ठीक है। ओके। उसके बाद मैं बोलूँ फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, तो हम फिर से रेजिस्टेंस की जगह पुट कर देंगे 5। तो ऐसे आप डिफरेंट वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने जैसे बताया था ना आपको,
V1, V2, V2, तो हम किसी का भी वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन ऑफ NCERT. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. But in one more question you have given electric lamp. You have given electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel combinations. तो आपके पास 3 values given है, R1, R2, R3 and voltage is given. R1 is given 100 ohm, 50 ohm and 500 ohm and voltage is given 220 volt. Next question is that what is the resistance? What is the resistance of electric iron connected to the same source that takes much current as all appliances, and what is the current through it? Now you have find the total resistance and total electric current. तो रेजिस्टेंस टोटल फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक करंट. तो these three resistors are connected in which combination? Parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल is equal to 1/100 plus 1/50 plus 1/500. इसको सॉल्व करके वैल्यू इसका बन गया 500 which is equal to 5 plus 10 plus 1 is equal to 16/500. तो इसको बेटे वैल्यू इसकी रिवर्स कर देंगे उल्टी, बिकॉज वी वांट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आप इसको रिवर्स कर दो, 500/60 is equal to 31.25 ohm. So this is the total resistance in the circuit, okay, having a parallel combination. तो बेटे सिंपल है, रेजिस्टेंस आपके पास है, वोल्टेज आपके पास है, तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ. ओम्स लॉ लगाती है तो वैल्यू क्या आएगी, I इक्वल टू V इक्वल टू Y है. सो I इक्वल टू V अपॉन R. वोल्टेज कितना बेटे 220 अपॉन रेजिस्टेंस इज 31.25. देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ वैल्यू आ जाएगा 7.04. So this is the value. This is the value of electrical current. Now you can understand that these questions are so simple. You should try these all questions. Okay. Okay. इस क्वेश्चन में बेटे एक चीज और पूछी थी, that is what is the resistance of electric iron connected to the same source. अगर उस इलेक्ट्रिक आयरन का वो भी सेम सोर्स के साथ लगी है, सेम सोर्स मतलब 220 वोल्टेज के साथ, तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी आएगी, उसमें भी टोटल रेजिस्टेंस सेम आएगी, उसमें टोटल करंट भी उतना ही आएगा. कितना आएगा, 7.04 एम्पीयर. ओके बेटे. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन न्यूमेरिकल इज दैट लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स. In next numericals we have, how can three resistors of resistance to 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. So you have given three resistors, R1, R2, R3. R1 is 2 ohm, R2 is 3 ohm and 6 ohm. So that इस क्वेश्चन में आपको बेटे 3 रेजिस्टर गिवन है, कि 3 रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है 2, 3, 6. क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं ताकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आए, या तो आए 1 ओम और या फिर आए 4 ओम रेजिस्टर. ठीक है. अब 4 कैसे आएगी और 1 कैसे आएगी, वही कॉम्बिनेशन लगाना है और फिर हमने इसको फाइंड करना है कि थ्रू दिस कॉम्बिनेशन वी कैन गेट दिस वैल्यू. Our first part is that okay.
तो बेटे हमें पता है अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं 3 और 6 पे पैरेलल, अगर हम 3 और 6 पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 2 आएगी। वो उस 2 को ऊपर वाले 2 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन लगा देंगे? सीरीज। ठीक है, तो इन दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ऊपर करेंगे, तो 2 + 2 आएगा 4। तो हमें पार्ट ए में क्या फाइंड करना था? 4 ओम, और पार्ट बी में फाइंड करना है 1 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? तो हम सबसे पहले करेंगे रेजिस्टर 2 और 3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू R2 R3 और R2 + R3। हम पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई भी 2 रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे 1/R3 = 1/R2 + 1/R3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा 1/R3 = इसको ऊपर इसको किया है R3 + R2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो R2 इसका उल्टा कर दो, रिवर्स किया, रिवर्स के बाद वैल्यू बनना R3 = R2 R3 और R2 + so we get this one formula। क्लियर? तो बेटे याद रखिए, जब भी आपके पास कोई 2 रेजिस्टर हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर आपके पास 3 या 4 ज़्यादा रेजिस्टर हो then you will apply plus this one 3 2 and 1। तो 1 2 3 के लिए अगर आप 3 से ज़्यादा होंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। अगर आपके पास 2 रेजिस्टर है तो आप ये सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर? चलिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। वैल्यू इज 2 × 3 × 6 upon 3 + 6 तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल = 2। इसको हम R1 के साथ करेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज = R2 + R1 2 + 2 = 4। तो फर्स्ट पार्ट हमने डन कर लिया बेटे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब इसी 2 और 2 को अब हमने कौन सी रेजिस्टेंस निकालनी है? अब हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है 1 ओम। तो वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? तो वो देखिए, इन दोनों को सॉल्व पैरेलल कॉम्बिनेशन से वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटे? 2 ओम। इस 2 ओम को ऊपर वाले 2 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे तो फिर कितनी वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगा इसका 1। लेट्स सी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ RP dash is equal to 1 from RP plus 1 from R1 so 1 ohm resistor 1 ohm नहीं आएगा, ये वैल्यू उल्टी करनी है, इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्सिंग का वैल्यू अगर हम 1 को रिवर्स करें तो वैल्यू 1 ही आएगी। ओके, दैट इज व्हाई वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। ओके बेटे, तो बेटे ये थे आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही क्वेश्चन आप और भी ट्राई कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स होगी, डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इसके ही और न्यूमेरिकल सेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल एग्जाम भी आएंगे, तो उसको हमने सॉल्व जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।